Ladies and gentlemen, good day and welcome to the Q4 and FY25 earnings conference call of Shakti Pumps India Limited. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then zero on your touchtone phone. I now hand the conference over to Mr. Rohit Anand from Ernst & Young LLP. Thank you, and over to you, Mr. Rohit Anand. Good afternoon, everyone. Before we proceed, let me remind you that this discussion may contain forward-looking statements that may involve known or unknown risks, uncertainties, and other factors. It must be viewed in conjunction with our business risk that could cause future results, performance, or achievements to differ significantly from what is expressed or implied by such forward-looking statements. To take us through the financial results and the key developments, and to answer your questions today, we have the senior management of Shakti Pumps India Limited, represented by Mr. Dinesh Patidar, Chairman, Mr. Ramesh Patidar, Managing Director, Mr. Dinesh Patel, Chief Financial Officer, and Mr. Ravi Patidar, Company Secretary and Compliance Officer. We will start the call with a brief overview of the past quarter and full year FY25 by Mr. Dinesh Patidar, followed by a Q&A session. I will now hand over the call to Mr. Patidar. Over to you, sir. Thank you, Rohit. सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आज हमारी कॉल में आप शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पिछले एक साल में हमारी कंपनी की उल्लेखनीय प्रगति और उपलब्धियों को आपके साथ साझा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। हमने हमारे ही सारे गोल और रिकॉर्ड्स को तोड़े हैं। मुझे ये घोषणा करते हुए गर्व हो रहा है कि हमने अपनी कंपनी के इतिहास में हाईएस्ट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस हासिल किया है। हमारी सेल 2516 करोड़ की रही है। हमारा EBITDA 603 करोड़ का रहा है। हमारा पेट 408 करोड़ का रहा है और ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हमने पार किया है। एवं हमने अपने सालाना गोल को, जो कि 1800 करोड़ था, वो 9 माह में अचीव कर लिया और यह एक अच्छा प्रदर्शन हमारा डोमेस्टिक में भी रहा और एक्सपोर्ट में भी रहा, जो असाधारण परिणाम जैसा था। हमारे जो डेटर्स पे चिंता थी, हम लोग काम कर रहे थे, उसको हम 152 दिन रखने में हमको सफलता हासिल हुई है और आगे भी हम उसमें गुंजाइश है कि हम उसको कम करेंगे। हमने हमारी टीम को इस टारगेट को अचीव करने के लिए उनको 120 दिन का डेटर रखने का टारगेट दिया है और उस पर वो लोग काम भी कर रहे हैं। आज हमारे पास करीब 1655 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक है, जिसमें महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान प्रमुख है। हम एक R&D कंपनी है और सतत प्रयास करते रहते हैं, जिसमें हमें अच्छी सफलताएं प्राप्त हुई है और आगे भी हम उसकी ओर काम करते रहेंगे। हमारी कंपनी के शेयर होल्डर्स के विश्वास एवं मूल्यों पर हमेशा हम कोशिश करते रहेंगे और हमारे साथ आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। आगे के फाइनेंशियल डाटा के लिए मैं ओवर टू दिनेश पटेल, जो है हमारे CFO, उनको देता हूँ। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. I will only brief talk about the FY25 numbers. We have delivered a remarkable performance across all metrics in FY25, with revenue reaching rupees 2,516 crores, reflecting an 83.6% YOY growth from rupees 1,371 crores in FY24. The EBITDA for the year was rupees 603 crore, a significant growth of 168% compared to 225 crores last year. This growth is attributed to higher order execution and our ongoing commitment to operational efficiencies, resulting in an expansion of EBITDA margins to 24% in FY25, up from 16.4% in FY24. In terms of PAT, we saw a huge increase of 188%
reaching to rupees 408 crore in FY25. The PAT margin improved to 16%, a substantial expansion from 10% in FY24, marking a 589 basis point expansion. Earning per share for the year was rupees 34 compared to rupees 12.8 per share in the previous fiscal. This year's performance underscores our robust financial results and solid balance sheet position. While Patilar sir has already emphasized our reduction in receivables days this year, even with significantly higher revenue, I would like to draw attention to additional key metrics. The company's net worth has increased to approximately rupees 1161 crore by the end of FY25, and our interest coverage ratio has strengthened to 13.6 times in FY25, up from 11.5 times in FY24. Furthermore, the return on capital employed (ROCE) has risen to 43.9% compared to 24.5% in FY24, and the return on equity has also improved, increasing to 35.2% in FY25 from 18.8% in FY24. The board has proposed a final dividend of rupees 1 per share, which is 10% of the face value. With this, I now request the moderator to open the floor for questions. Thank you. Thank you. We will now begin the question and answer session. To ask a question, you may press star then 1 on your touchtone phone. To remove your question, you may press star then 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Our first question comes from the line of Agastya Dave from Cow Capital. Please go ahead. Hi, it's CEO Capital. Sir, thank you very much for the opportunity and congratulations, sir. काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं. सर, पिछले क्वार्टर के कॉन्फ्रेंस कॉल के बाद, आई थिंक 2 या 3 दिन के बाद ही आपने एक डील अनाउंस की थी, आई बिलीव अदानी सोलर के साथ पैनल्स के लिए, और आप पिछले क्वार्टर में कह रहे थे कि पैनल अवेलेबिलिटी एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट आपके लिए आ रहा था हायर ग्रोथ के लिए और नए कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए. तो मेरा पहला क्वेश्चन सर यही है कि उस डील के बाद आपकी पैनल अवेलेबिलिटी का क्या सिचुएशन है सर? आपकी सप्लाई कब से स्टार्ट हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, और नए और ये जो एग्जिस्टिंग ऑर्डर्स हैं, ऑर्डर बुक है, उसको एग्जीक्यूट करने के बाद नेक्स्ट ईयर के लिए आपका आउटलुक क्या है रेवेन्यू ग्रोथ का? एंड सर, मार्जिन्स का भी, ये पैनल्स कितने प्राइसिंग पे हमको मिलेंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है अगस्त्य जी आपका. आपने अच्छे से कंपनी को स्टडी किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको. हमने रिन्यू के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया था जो 1300 करोड़ का एक कॉन्ट्रैक्ट था, जिसमें वो हमको 1300 करोड़ रुपए के सेल प्रोवाइड करेंगे, जिसकी परचेज स्टार्ट हो चुकी है. हमने एक कॉन्ट्रैक्ट अडानी के साथ भी किया, उनकी भी सप्लाई चालू हो चुकी है. हम ऑलरेडी प्रीमियर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके हैं, जिनकी उनकी सप्लाई रेगुलर है पिछले सालों से. तो अब आने वाले समय में जो हम देख रहे हैं कि जो हमारा टारगेट है कि हम अगले साल 3000 करोड़ का जो काम सोलर में हम ग्रोथ करेंगे, तो उसके पैनल हमारे पास सफिशिएंटली हमारे पास एग्रीमेंट के थ्रू अवेलेबल है, वो हमने एश्योर कर लिया है. अब आप इबिटा मार्जिन की बात कर रहे हैं, तो यस, 3000 करोड़ का हमारा जो हमने इंटरनल हमारा टारगेट रखा है, उसके अंदर हम 24% इबिटा मार्जिन पर काम करेंगे. हमारा सोचना है कि हम उन्हीं नंबर्स और एसक्यूज और स्टेट में काम करेंगे जहां पर हमको अच्छे मार्जिन की गुंजाइश होगी. सर, किसी टाइप का स्लो डाउन आपको दिखा है गवर्नमेंट की साइड, किसी भी गवर्नमेंट की साइड से? क्योंकि नए नए स्टेट्स आते जा रहे हैं, लेकिन कुछ पुराने स्टेट्स में एक्टिविटी लेवल थोड़ा सा एटलीस्ट लग रहा है. आपको पूरी पिक्चर मालूम होगी सर, हम लोग को जितना दिखता है उससे लग रहा है कि थोड़ा सा कूल डाउन हुआ है. तो ओवरऑल पिक्चर आपको कैसी लग रही है? और ये 3000 करोड़ का जो टारगेट है आपका सर, ये कितना डिफिकल्ट है आपके हिसाब से अचीव करना? क्या ये आराम से हो जाएगा या फिर आपको थोड़ी सी और सेल्स पे थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी?
हमारी टीम और मैं खुद भी कॉन्फिडेंट हूं कि ये टारगेट हम बिल्कुल अचीव करेंगे। ये मिनिमम हमारे लिए टारगेट है। और आपका दूसरा क्वेश्चन था कि कुछ स्टेट स्लो हुई है, तो मुझे नहीं मालूम आपके पास कौन सी इंफॉर्मेशन है और कौन सी स्टेट स्लो हुई है। हमको किसी भी स्टेट में कोई भी स्लो होते हुए, क्योंकि कुसुम और सोलर पंप अपने आप में एक बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि हर स्टेट को, हर फार्मर को, हर मैन्युफैक्चरर को, हर इंस्टॉलर को इसमें प्रॉफिट है। तो अभी स्लो नहीं और स्पीड इसकी आने वाले समय में बढ़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। सारे स्टेट में अच्छे तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। ग्रेट सर, थैंक यू वेरी मच सर, मुझे टाइम देने के लिए। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू अगस्ता जी, थैंक यू। Thank you. Your next question comes from Tushar Gupta from Sagun Capital. Please go ahead. Tushar Gupta, your line is unmuted. Please proceed with your question. हेलो। हाँ बोलिए तुषार जी, बोलिए। Yes, sir. Please go ahead. अभी I'm so sorry to interrupt. Tushar sir, your line is not coming that audible. Really sorry, sir. Tushar sir, we are not able to hear you. We request you to recheck your connection and get back in the question queue. We'll move on to the next question. Our next question comes from the line of Swarna Ashish from Asterisk Capital. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे लास्ट ईयर में हमारा ऑर्डर इंटेक थोड़ा स्लो हुआ था बिकॉज हमारा डीसीआर सेल्स का अवेलेबिलिटी थोड़ा कम था। अभी वो इशू सॉल्व हो गया है क्या? एंड दूसरा कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमको मार्जिन का थोड़ा बेनिफिट मिला था बिकॉज हमारा सोलर पैनल्स का प्राइस भी थोड़ा कम था, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि आप 24% मार्जिन के लिए गाइडेंस दे रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट विल रियलाइज इट एंड आवर मार्जिन विल बी अगेन बैक टू हाई टीन्स, मे बी बिलो 20%. इज इट पॉसिबल? यही मेरा क्वेश्चन सर। थैंक यू सर। हाँ शीज, आपका जो डीसीआर वाला जो आपका क्वेश्चन है, यस, वो हम कॉन्फिडेंट है। जिन लोगों से हमने एग्रीमेंट किया है वहां से सप्लाई हमको टाइमली अपने 3000 करोड़ तक तो आराम से मिलेगी, इसमें हमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा यस, आपका सोचना अच्छी बात है कि जो डीसीआर सेल्स की प्राइस थोड़ी इंक्रीज हुई है, लेकिन उसके सामने थोड़ी प्राइस दूसरे रॉ मटेरियल्स की भी कम हुई है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम सब तरफ से प्लानिंग करके हमारा 24% का एबिटा जो मार्जिन का हमने प्लान किया है, उसमें हम कॉन्फिडेंट है और उसमें हमको लगता है कि हम उसको अचीव करेंगे। थैंक यू सर। इस साल का कोई ऑर्डर इनफ्लो का कोई गाइडेंस है क्या? 1650 करोड़ के हमारे पास ऑर्डर बुक है आज की तारीख में। इनफ्लो सर, इनफ्लो इस साल का 26 फाइनेंशियल 26 में कितना ऑर्डर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इनफ्लो आने वाला है। हाँ बोलो दिनेश। अच्छे ऑर्डर्स हम देख रहे हैं, सभी स्टेट से अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, बट जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आपको हम बताते जाएंगे। थैंक यू सर। Thank you. The next question comes from the line of Ankur Kumar from Alpha Capital. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू फॉर टेकिंग माय क्वेश्चन। कांग्रेट्स फॉर ए गुड सेट ऑफ नंबर। सर, ये जो आप कह रहे हैं कि 3000 करोड़ हो जाएगा ऑर्डर बुक, मतलब हमारे पास और ऑर्डर्स कब एक्सपेक्टेड सर? लास्ट ईयर तो आई थिंक महाराष्ट्र में काफी बड़ा ऑर्डर मिला विच वुड हैव हेल्प्ड लास्ट ईयर हमारे को। इस साल सर कौन सी स्टेट से हम बड़ा ऑर्डर एक्सपेक्ट कर रहे हैं? देखिए, सारे हमारे पास हम सभी जगह काम कर रहे हैं और सभी जगह हमको ये ऐसा कॉन्फिडेंट है कि हम लोग 3000 करोड़ का आराम से कर लेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में तो हम काम कर ही रहे हैं, राजस्थान में कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, पंजाब में भी अब करने जा रहे हैं आगे। और हमको लगता है कि हम इसको आराम से 3000 करोड़ से को क्रॉस करेंगे। सर, ये गवर्नमेंट मतलब मोस्टली कुसुम से ही आएगा ये, या कैसे एक्सपेक्टेशन है? हमारे पास एक्सपोर्ट ऑर्डर्स का वगैरह भी कैसे हैं सर? यस, ये एक्सपोर्ट में भी आप देखिए कि जो 3000 करोड़ का हम जो टारगेट आपको बोल रहे हैं, उसमें से 500 करोड़ हम हमारे एक्सपोर्ट का प्लान कर रहे हैं, बचे 2500 करोड़। उसमें से हमारे पास 1650 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी हैं, बाकी 1000 करोड़ के ऑर्डर हमको दूसरे स्टेट में आराम से बनते हुए दिख रहे हैं।
Got it. And सर ये इक्वली बाइफरकेट होंगे लाइक लास्ट ईयर तो हमारे पास सिमिलर से क्वार्टर थे सब 550, 570, 650 टाइप, तो इस साल भी ऐसा ही एक्सपेक्टेशन है हमारे पास सारे सिमिलर क्वार्टर्स होंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए मेरी एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि हम लोग जो शक्ति पंप्स की टीम है वो बॉटम लाइन के लिए काम करती है। हमको जो जिस एसक्यू में हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, जिस स्टेट में हमको ज्यादा प्रॉफिट होगा, उस स्टेट में हम अपना फोकस करके वहां से अपनी सेल आगे बढ़ाने की प्लानिंग करेंगे और वहीं से उस तरीके से काम करेंगे। तो हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से ये हमको पता है कि हमको 24% EBITDA मेंटेन करने के लिए कौन से स्टेट्स में हमको काम करना है और कौन कौन से एसक्यू में काम करना है। गॉट इट सर। सर लास्ट क्वेश्चन, ये अब आप कुछ देना चाहेंगे सर गाइडेंस की ऑर्डर्स कब बड़े ऑर्डर्स कब मिलेंगे, मतलब हमारे पास क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी आप देखिए ना 6 महीने की ऑर्डर बुक तो ऑलरेडी हमारे पास है, 500 करोड़ एक्सपोर्ट के और 1650 करोड़ डोमेस्टिक के, ऐसे 2100 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी हमारे पास है। तो 6 महीने की बुकिंग तो ऑलरेडी है, उसके बाद बात करेंगे अपन। गॉट इट सर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Your next question comes from Tushar Gupta from Shagun Capital. Please go ahead. Yes. हाँ बोलिए तुषार, Yes, बोलिए। सर जैसे कि हमारा प्लान है कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कर रहे हैं, तो उसका क्या? Tushar sir, your voice is sounding muffled. If you are using a speakerphone, may Hello. we request you use handset, please? Mr. Hello. Gupta? Hello, sir. I'm audible now? Sir, your voice is breaking in between. Now perfect or still? It is slightly better, sir. Oh, yes, sir. I want to ask that we are planning to install a new plants and we have to raise the funds for that. ओके तुषार, आई अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन। मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। Yes. हमने जो फंड रेज किया था उसमें हमको हमारी वीएफडी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमको वीएफडी की 2 लाख से 2 लाख और करने के लिए 4 लाख वीएफडी की कैपेसिटी, सोलर इन्वर्टर जो है उसकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने कुछ फंड रेज किया था। वो 4 लाख वीएफडी की कैपेसिटी हो चुकी है, ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है। और जो 1 लाख स्ट्रक्चर से हम 2 लाख स्ट्रक्चर बनाने वाले थे, वो जो कैपेसिटी अनाउंस कर रहे थे क्योंकि यहाँ बॉटम लाइन थी, ये हम ऑलरेडी इसकी कैपेसिटी अनाउंस कर चुके हैं और कुछ क्वांटिटी में हम पंप्स की भी कैपेसिटी अनाउंस कर चुके हैं। तो ये मेरा आपका आंसर है। सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डीसीआर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की रिगार्डिंग पूछना चाह रहा था कि वहाँ पे हमारी क्या प्रोग्रेस है? अभी हमें लैंड पे अलॉट हुआ है, व्हेन वी विल स्टार्ट? बराबर है, उसमें अभी समय है हमारे पास। अभी हमको लैंड मध्य प्रदेश सरकार ने अलॉट की है और उस पर हम उसको प्लानिंग करके आगे बढ़ाने के, उसको ले जाने के लिए कर रहे हैं। वो अंडर अभी प्लानिंग में है। जैसे ही उसमें कंक्लूजन होगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। Yes, sir. Thank you. The next question comes from the line of Praful Siddharth from Shravas Capital. Please go ahead. Hi, sir. Congrats on good set of numbers. I just have a couple of questions. So how many pumps were installed this quarter and the last quarter, and what is the revenue from government this quarter and last quarter? Okay. So this quarter we have installed in solar EPC 18,749 pumps, and for the year 71,572. And revenue for the quarter from solar EPC is 496 crore, and for the year 1,939 crore. And what is the revenue from exports this quarter and last quarter? This quarter is around 125 crore, and for the year 437 crore. So this last question, what led to the fall in other expenses from 74 crores to 53 crores this quarter? Other expense की बात कर रहे हैं? Yes.
So there's a fall from 74 to 55. Is there any one-off in the previous quarter, or is there any other reason for this? हाँ, so like जैसे एजुकेशन जो बड़ा है ना, तो उसमें हमने जो सर्विस का हमारा रीस्टेटमेंट हुआ है और कुछ रेवेन्यू जो है वो डेफरमेंट भी हुआ है, तो कुछ पॉलिसीज में चेंज आया है माइनर. Okay, sir, but quarter on quarter, we were broadly the same run rate, so 650 crores, but our other expenses, there's a steep fall of around 20 crores, from 75 to 55. हाँ, तो जो प्रोविजन था सर्विस का वो रिवर्सल हुआ है, क्योंकि जो हमारा हिस्टोरिकल ट्रेंड है वो डाउनफॉल की साइड था, तो इसलिए ऑडिटर ने उसमें कॉल लिया है. Got it, sir. That's it from my end. Thank you. Okay, thank you. Thank you. The next question comes from the line of Darshil Pandya from Finterest Capital. Please go ahead. सर नमस्कार. नमस्कार जी सर. सर लास्ट कॉल में आपने डिस्कस किया था कि हम फंड रेज की तरफ भी जाएंगे अराउंड 400 करोड़ का, तो वो ये साल में प्लान है कब है? हाँ, उसका वो अंडर प्रोसेस है और हमारे बात चल रहा है. जैसे ही कंप्लीट होता है आपको बिल्कुल इंटीमेट करेंगे. ओके. और सर दूसरा पूछना था, जो ईवी मोबिलिटी है उसमें ये साल में कैसा रेवेन्यू देखने मिलेगा? ईवी में, यस, ईवी में हम लोग अच्छी पोजीशन पे हैं. हमने कुछ स्टार्ट किए हैं प्रोडक्शन भी, और अच्छे नंबर्स भी इस क्वार्टर में आप नेक्स्ट क्वार्टर में आप देखेंगे. उसमें कुछ अच्छे नंबर्स स्टार्ट होंगे. कि अब वो अभी तक तो पूरा R&D पे उसके सिस्टम चल रहे थे, अप्रूवल पे चल रहे थे. यस, अब हमने उसके स्लोली प्रोडक्शन उसका चालू किया है, और अगले क्वार्टर से उसमें अब ग्रोथ आने लगेगी, और अगले क्वार्टर से हम आपको उसका अलग से ग्रोथ का प्लान भी बताना चालू करेंगे. ठीक है, ठीक है. शुक्रिया सर. Thank you. Listen. Thank you. The next question comes from Saumil Jain from Lucky Investments. Please go ahead. Hello sir. I have two questions. एक महाराष्ट्र स्कीम से जो अपनी ऑर्डर बुक थी एंड कंपोनेंट सी फ्रॉम अजमेर, वो दोनों फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो उससे कुछ बात कर सकते हैं? हाँ, महाराष्ट्र में तो हम लोग कर रहे हैं, बराबर अच्छी प्रोग्रेस पे काम कर रहे हैं और बढ़िया अच्छे तरीके से चल रहा है. अजमेर में स्लो है क्योंकि वो पायलट प्रोजेक्ट है, उसमें थोड़ा धीमी गति का समाचार है, क्योंकि उसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं डिपार्टमेंट के साथ मिलके. ओके, तो ये दोनों ऑर्डर बुक्स कब तक एग्जीक्यूट हो जाएंगे, और इनकमिंग कंपोनेंट सी और महाराष्ट्र स्कीम से आप कितना ऑर्डर एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट 1-2 क्वार्टर्स? तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर तो ठीक है, कर ही रहे हैं. मैंने जैसा आपको बताया कि हम सालाना 3000 करोड़ का काम करेंगे, उसमें ये भी सब कवर है. ओके, मतलब आप कुछ स्पेसिफिक बता सकते हैं महाराष्ट्र और कंपोनेंट सी के बारे में, या फिर महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं. कंपोनेंट सी चूंकि अपना प्रोडक्ट वो जो है वो पायलट प्रोजेक्ट है, तो उसमें थोड़ा स्टेप बाय स्टेप बढ़ना हम पसंद करेंगे. ओके. एंड सर, जो अभी करंट रिसीवेबल्स की रन रेट है, वो हम नेक्स्ट ईयर भी यही एक्सपेक्ट करते हैं रिसीवेबल्स की रन रेट? हाँ जी, लगभग सेम रेट पर रहेगा, बल्कि और इसको हम रिड्यूस करने के उसमें है कि हमारे जो इंटरनल टारगेट है वो 120 डेज है. अभी ये हम 178 से करीब 152 पे ले आए हैं, और आगे जो हमको दिखता है ये करीब 120 के आसपास हम आराम से ला सकते हैं. हिस्टोरिकल ट्रेंड भी वैसा ही रहा है हमारा. ओके, दैट्स इट सर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. Thank you. Your next question comes from the line of Rohit Singh from Invest Analytics Advisory LLP. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes. Congrats for good numbers, sir. Sir, last quarter में हम बात कर रहे थे minimum growth of 25% in sales, and last quarter we were talking about in the range of 25 to 30%. बट सडनली सर इस क्वार्टर में हम बात कर रहे हैं 3,000 करोड़ के सेल्स की टारगेट की, विच इज ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ दैट वी आर टारगेटिंग फॉर नेक्स्ट ईयर. तो सर ये चेंज क्यों हुआ है? नहीं, चेंज नहीं हुआ है. हम ये आपको मिनिमम दे रहे हैं. जो सर ने आपको इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू बात की ना, वो मिनिमम टारगेट दिया है 3,000 करोड़ का. तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है. कंपनी की फिलोसॉफी सेम है, काम भी सेम है. एंड सर ऑर्डर बुक साइड के ऊपर, लाइक लास्ट क्वार्टर में आपने मेंशन किया था कि हमारे को सप्लाई चेन में इश्यूज हैं,
अदरवाइज ऑर्डर तो हमारे पास कंटिन्यूसली आ ही रहे हैं, हम आज चाहें तो आज भी ऑर्डर गवर्नमेंट से ले सकते हैं। तो सर ऑर्डर्स में इतना डिले क्यों हो रहा है? बिकॉज लास्ट फोन कॉल से लेके अब तक हमने कोई भी मेजर ऑर्डर रिसीव नहीं किया, जो कि नेक्स्ट ईयर में हमें कॉन्फिडेंस दे दीजिए कि लाइक यू आर सेइंग कि 20% मिनिमम नंबर हम अचीव करेंगे। तो वो ऑर्डर हमें रिसीव क्यों नहीं हुआ है सर? और क्या कुछ ऐसा हो रहा है सर कि क्वेश्चन डी से जो है ऑर्डर स्लो होने लग गए हैं एंड वी आर लुकिंग मोर टुवर्ड्स द क्वेश्चन सी? नहीं, कुछ मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा। इसमें 1650 करोड़ की ऑर्डर बुक ऑलरेडी मेरे पास 6 महीने की है। अभी से ऑर्डर ले लूंगा तो कैसे काम चलेगा अगले? और 500 करोड़ एक्सपोर्ट के हैं तो 2100 6 महीने की ऑलरेडी मेरे पास बुकिंग है। 2100 करोड़ की ऑलरेडी बुक है। आज अगर मैंने कोई बड़े ऑर्डर ले लिए तो फिर मुझे सप्लाई भी उसको टाइमली करना है ना, नहीं तो अदरवाइज पेनल्टी क्लास में आऊंगा ना मैं। तो 2100 करोड़ क्या है, ये आप 6 महीने में एग्जीक्यूट कर देंगे पूरा? वही तो कहना चाह रहा हूँ ना मैं आपको कि 2100 करोड़ के ऑलरेडी ऑर्डर बुक है, तो और नए ऑर्डर लेके क्या करेंगे हम? आप ये बताइए ना। आएंगे तो बिल्कुल लेंगे, बिल्कुल लेंगे और आपको बताएंगे भी सही और इन्फॉर्म भी करेंगे। अभी हमारा इंटरनल जो हमारा इंटरनल कंपनी का जो टारगेट है वो मैंने आपको बताया कि हम लोग 3000 करोड़ एक साल में करेंगे, 24% EBITDA पे काम करेंगे और ऑलरेडी 1650 करोड़ की ऑर्डर बुक है, 500 करोड़ की एक्सपोर्ट की ऑर्डर बुक है। तो ये तकरीबन 2100 करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक है और इसके हिसाब से आगे हम और काम करेंगे और उसी लिए एक्सपांशन भी लेके आए। धीरे धीरे हम बढ़ाएंगे भी सही इसको। समझ गया सर। एंड सर ईवी साइड के ऊपर आपने बोला कि इस क्वार्टर से नंबर कितना स्टार्ट होंगे, तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा सर इस साल? हाँ, वो सब मैं अगले क्वार्टर में अपन बात करेंगे। ईवी की शक्ति ईवी के लिए मैं अलग से एक स्लाइड बना के लाऊंगा और उस पर आपसे बात करूंगा कि अब ये हमने इस कंपनियों के साथ टाई अप हो गया, सेल हो गया और सेल स्टार्ट हो गया। समझ गया सर। ठीक है सर, ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर सर। थैंक यू वेरी मच रोहित। Thank you. The next question comes from the line of Nikhil Abhyankar from UTI Mutual Funds. Please go ahead. Hi sir, thank you. Thanks a lot. So just wanted some clarification. You mentioned that you have sold 71,500 odd KUSUM pumps directly, is it? Or is it direct plus indirect? This is direct only. This is direct. And how much will be indirect pumps? एक्चुअली हम लोग अभी OEM हमने इसमें बंद कर दिया है। हम OEM को सप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम खुद ही कर रहे हैं ना। खुद ही कर रहे हैं। सो एक पंप भी आप बाहर नहीं बेच रहे हो? राइट। और ये आपने मतलब रेवेन्यू बताया एक्सपोर्ट्स का अराउंड हाउ मच 125 करोड़ इन Q4 और सेगमेंटल में अगर देखेंगे तो साल भर का 89 करोड़ आ रहा है इन कंसोल। सो ये मतलब व्हाट एम आई मिसिंग हियर? नहीं, टोटल आप 437 करोड़ एक्सपोर्ट है अपना, उसमें से इस क्वार्टर का जो है वो करीब है 125 करोड़। नहीं सर, ये सेगमेंटल इसमें ओवरसीज सेगमेंटल रेवेन्यू में हमारा 83 करोड़ ही दिख रहा है रेवेन्यू। सो वो डिफरेंस क्यों है इतना बड़ा? कौन सा स्लाइड आप रेफर कर रहे हैं? सर मैं रिजल्ट डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, सेगमेंटल आपने जो दिया है ना, सेगमेंटल इन्फॉर्मेशन नहीं सेम ही आ रहा है। इंडिया रेवेन्यू और साल भर का रेवेन्यू यहाँ पे कंसोल में ओवरसीज में 83 करोड़। हाँ निखिल, आप जो है ना इसके लिए आपको अलग से रिप्लाई करते हैं ईमेल पे, आप भेजो अलग से। कुछ कंफ्यूजन है आपको तो उसको क्लियर कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। नहीं मैं बता देता हूँ सर, इसमें 83 करोड़ जो आप देख रहे हैं ना वो मेरी 2 सब्सिडरी का रेवेन्यू ओनली, FJD एंड USA। निखिल ये मैसेज आपके लिए था, जो आप देख रहे हो वो सिर्फ 2 सब्सिडरी का देख रहे हो, FJD एंड USA। ओके, सो इसके अलावा भी मतलब इंडिया से भी जो बन के जा, हाँ वो इंडिया से जो डायरेक्ट किया वो भी पूरा आता है 125 में फॉर द क्वार्टर। ओके ठीक है, थैंक यू। Thank you. Next question comes from Deepak Parswani from Swan Investments. Please go ahead. Hello sir, congratulations for good set of numbers. सर मुझे ये समझना था, आपने प्रेजेंटेशन में मेंशन किया है कि हम लोग अभी एक्टिवली बाकी स्टेट में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे हमने मेंशन किया है MP है पंजाब में, तो
उसमें अगर आप थोड़ा बता पाएंगे कि वहाँ पे अभी कैसे टेंडरिंग हो रहा है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी लग रही है, या वहाँ पे हम लोग कैसे बिड देख रहे हैं नेक्स्ट 3 या 6 या 12 महीने में, तो दैट वुड बी रियली हेल्पफुल। ओके, मैं फिर से बोलता हूँ। हमने अपने आने वाले समय में 3,000 करोड़ का जो टारगेट रखा है, वो टारगेट इन सभी स्टेट के बिजनेस को देखते हुए रखा है, और स्टेट वाइज अलग से जो प्लानिंग की है वो भी हमने की हुई है। हम महाराष्ट्र से भी लाएंगे, हम राजस्थान से भी लाएंगे, हम हरियाणा से भी लाएंगे, हम यूपी से भी लाएंगे, और अभी पंजाब से भी ऑर्डर मिला, और किसी स्टेट के ऑर्डर जैसे ही मिलेंगे हम विद इन 10 आवर्स आपको अपडेट करेंगे। हाँ सर, लेकिन स्पेसिफिकली अगर एमपी से अगर आप कुछ हाईलाइट कर पाए कि वहाँ पे कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आ सकती है हमारे लिए। बिल्कुल, जैसे ही आएगी हम बिल्कुल आपको 12 घंटे के अंदर इन्फॉर्म करेंगे। और सर दूसरी चीज, फ्रॉम द पेमेंट टर्म्स अगर आप कुछ हाईलाइट कर पाएंगे स्पेसिफिकली रिलेटेड टू द महाराष्ट्र स्टेट, आर वी सीइंग एनी पेमेंट डिलेज, या उनके सब कुछ टाइम पे आ रहे हैं हमारे पास? टोटल आप देख रहे हो कि हमने इतना बढ़िया काम किया है। 178 दिन से हम 152 दिन पे आ चुके हैं, तो ये हमारे टीम के लिए बहुत ही अप्रिशिएट करने वाली बात होगी। और अगला टारगेट भी हम 120 दिन रख रहे हैं, और बढ़ते रेवेन्यू में ये किया है हमने। ओके, थैंक यू। Thank you. Next question comes from Mahendra Kumar from MK Security Family Office. Please go ahead. Yes, man. Mr. Mahendra Kumar, your line is unmuted. Please proceed with your question. As there is no response from the line of the current participant, we'll move on to the next question. The next question comes from the line of Varun from Equitree Capital. Please go ahead. Hello. Hi, sir. Congratulations for good set of numbers. Couple of questions. So, पहले तो ये installation last 3 quarters से has been around 18,000, 19,000 pumps. So, has there been any execution challenges, or आप इस पे क्या कहना चाहोगे? And secondly, market share is also seen to reduce across the overall orders. It's around percent in Q4 versus 17% in Q3. तो ये decline दिख रहा है market share में. So any reason कि competitive pressure है, या what do you want to say on that? Yes, sir. आपका पहला क्वेश्चन तो कंपटीशन वाली जो आप बात कर रहे हो कि मार्केट शेयर हमारा कम हो रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम उन स्टेट में काम करना पसंद करेंगे जहां पर हमको मार्जिन में सपोर्ट मिले। उन एसक्यू में काम करना पसंद करेंगे। एसक्यू से मतलब मेरा है कि जिस प्रोडक्ट में और जिस एसक्यू में हमको जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होगा उसमें हम काम करते हैं। तो कहने का मतलब यह है वरुण कि हम उन्हीं स्टेटों में काम करेंगे जहां पर हमको पैसा टाइमली डिलीवरी होते हुए दिखेगा। हम उसी प्रोडक्ट में काम करेंगे, उसी एसक्यू में काम करेंगे जिसमें हमको मार्जिन की संभावना होगी। हम मार्केट शेयर के परसेंटेज वाली जो आपकी बात है कि आप परसेंटेज अपना धीरे धीरे लो हो रहा है, उसको बोलने में मैं ये बोलूंगा कि ये बहुत बड़ा मार्केट अपॉर्चुनिटी है। हम और भी हमारे कंपटीशन का स्वागत करेंगे, और भी लोग अगर आना चाहते हैं इसमें तो आए, क्योंकि हम अकेले 4.5 करोड़ पंप का सप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हम चाहते हैं कि बड़े प्लेयर्स आए, उसमें जो बड़े मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी आए, उनके साथ मिलके हम हिंदुस्तान को अच्छे तरीके से हमारे जो सोलर पंप है उसको सर्व करें। तो हम चाहते हैं कि हम लीडर भी बने रहे इस चीज में, और हम चाहते हैं कि एक मार्जिन भी हमारा मेंटेन रहे, लेकिन हम ये कतई नहीं चाहेंगे कि हम नंबर के पीछे भागें और अपनी बैलेंस शीट में प्रॉफिट कम दिखाएं या कम कर पाए। तो हमारा आपने मेंशन किया जहाँ पे पैसा मिल रहा है, तो कोई स्टेट से आपको कोई इश्यू दिख रहा है? अभी फिलहाल जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हाँ, हम जहाँ पर अभी हम काम कर रहे हैं वहाँ पर हमको पैसा मिल रहा है, इसीलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए डेटर्स डे भी हमारे डाउन हुए, इसीलिए डेटा डाउन हुए हैं ना। राइट। और ये इंस्टॉलेशन पे 18-19 पंप, इंस्टॉलेशन पे कोई चैलेंज नहीं है। इंस्टॉलेशन पे तो हम हमारे पास बहुत ही अच्छे तरीके से पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हमने मोबाइल एप्स डेवलप की हुई है, और हमारे पास SAP भी है, सेल्स फोर्स नाम का अभी हमने एक सॉफ्टवेयर भी परचेज किया है,
बहुत अच्छे तरीके से हम हमारी पूरी स्कीम को एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और उसमें कोई चैलेंज हमको उसमें नहीं लगता है। इसमें ग्रोथ दिखना चाहिए इन कमिंग क्वार्टर्स, ये जो क्वार्टरली रन रेट है। बिल्कुल बिल्कुल 3000 इनकमिंग के साथ ही है ना ब्रदर, 3000 का जो टारगेट है। सर आपको बार बार सर वो ये बोल रहे हैं कि आप इसको नंबर, ये हम जो है रेवेन्यू पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। और ये जो लास्ट क्वेश्चन, ये जो आपका केपेक्स का स्टेटस था वो डिले हो रहा है, ओवरऑल जो डबलिंग कैपेसिटी डबल करने का प्लान था, तो व्हेन विल दैट स्टार्ट, क्योंकि ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है वो। नहीं सर, उसमें कोई मेजर डिले नहीं हुआ है। आपको जैसे सर ने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वीएफडी की कैपेसिटी हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं, स्ट्रक्चर की कैपेसिटी भी ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी है। रही बात पंप एंड मोटर्स की, तो वो भी जो हमारा टारगेट था वो हमने ऑलरेडी हर क्वार्टर में मॉनिटरिंग रिपोर्ट यहाँ पे हम पब्लिश भी करते हैं, आप देखेंगे तो उसमें कोई मेजर डिले नहीं है। नहीं, वो आपने यूटिलाइजेशन रिपोर्ट में दिया है ना कि ऑलरेडी जो जून 24 में होने वाला था वो अभी तक विल हैपन नाउ इन मे। आप देखें तो कंप्लीशन डेट जो मार्च 26 था उसको हमने जून 26 के, ऐसे ज्यादा कोई डिले है ही नहीं। इसको डिले भी नहीं बोलते हैं, और 3 महीने का डिले नहीं होता सर। ओके, ठीक है सर, आई विल गेट बैक इन द क्यू। थैंक यू। Thank you. Our next question comes from Prateek Bhandari from Art Ventures. Please go ahead. सर गोइंग फॉरवर्ड हमारा डोमेस्टिक टू एक्सपोर्ट का क्या रेवेन्यू मिक्स रहेगा? हेलो। यस, अभी मैंने बताया ना इसके पहले वाली कॉल में कि हम लोग जो 3000 करोड़ है उसमें 500 करोड़ जो है हमारा एक्सपोर्ट से हम लाएंगे। तो जो मिक्स है वो परसेंटेज में कितना होता है? करीब 17% रहेगा, ऑलमोस्ट 20% के आसपास हम मेंटेन करते आए हैं। 20% एक्सपोर्ट्स। यस। और सर कोई न्यू एरिया देख रहे हैं एक्सपोर्ट मार्केट्स में? हाँ, हम तो हमारी जो सेल्स की टीम है वो ऑलवेज वर्ल्ड में टूर करती रहती है और हमेशा नए डीलर्स बनाती रहती है। ओके। और सर मार्जिन्स में कितना डिफरेंस है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक में? 10% का हमने ऑलवेज गाइडलाइन दिया है कि 10% का एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक डिफरेंस रहता ही है। ओके ओके सर, थैंक यू। Thank you. Next question comes from Amit Kumar from Determined Investments. Please go ahead. Yeah, hi. Thank you so much for the opportunity, sir. आप मुझे सुन सकते हैं? हाँ जी। हाँ अमित बोलिए। हाँ, ओके, थैंक यू सो मच सर। सर ये हमारा जो एक्सपोर्ट है ये पिछले साल फिस्कल 25 में जो 2500 करोड़ का रेवेन्यू था उसमें कितना होगा? 437 करोड़ सर। 437। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Thank you. Next question comes from Mohit Jain from M Capital. Please go ahead. Sir, my question was अपना जो स्टेट वाइज ब्रेकअप है उसमें प्रेजेंटेशन में ऐसा आया है कि वी हैव नॉट बीन एबल टू, यूपी में अपना एग्जीक्यूशन बहुत कम हुआ है या फिर बहुत स्लो है, और महाराष्ट्र ऐसा लग रहा है कि हम लोग ने सिर्फ महाराष्ट्र का के स्टेट में एग्जीक्यूशन ज्यादा किया है, तो उस पर थोड़ा आप गाइडेंस दे पाएंगे? एक्चुअली महाराष्ट्र में ऑर्डर भी बड़े थे, आपने देखा होगा, तो इसलिए वहाँ पे एग्जीक्यूशन, बट ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे ज्यादा ही होगा, और जहाँ पे ऑर्डर साइज थोड़ा छोटा रहेगा वहाँ पे एग्जीक्यूशन भी उसी साइज में जाएगा। तो यूपी के ऑर्डर तो जो आए थे वो 2 क्वार्टर से अपना एग्जीक्यूशन रफली हुआ है, बहुत कम एग्जीक्यूशन हो रहा है, तो वहाँ पे कोई स्टेट में इश्यू हो रहा है एग्जीक्यूशन करने के लिए? नहीं, कोई इश्यू नहीं है, हम ही स्लो हैं, हम स्लो है यूपी को लेके। अभी वहाँ पर मटेरियल भी हमने थोड़ा मूव किया है और हम खुद ही उसको लेके स्लो है। उनके यहाँ क्लैरिटी आनी है अभी कि वो 75% और 90% सब्सिडी पे कुछ कर रहे हैं, तो उसकी क्लैरिटी जैसे ही आएगी हम उसकी स्पीड में बिल्कुल बढ़ाएंगे। हम तो हर तरफ वॉच करके आगे बढ़ते हैं कदम बाय कदम। ओके, तो ये जून क्वार्टर में भी यूपी के स्टेट से तो स्लो ही रहेगा और मतलब वहाँ पे एग्जीक्यूशन बहुत नहीं रहेगा। तो महाराष्ट्र में अपना इस क्वार्टर में यूपी का भी अच्छे से हो जाना चाहिए। अच्छा, और महाराष्ट्र में जो अपने वो लेटर ऑफ इंटेंट जो इम्पैनलमेंट हुआ था 25,000 पंप का, तो उसमें से कुछ ऑर्डर एग्जीक्यूशन का पॉसिबिलिटी है?
उसमें मैं आपको बताऊं, मुझे बड़ी खुशी है ये बात बताते हुए आपको कि आपने अच्छा हुआ ये क्वेश्चन पूछा। हमारे सारे इन्वेस्टर को ये बात मालूम होनी चाहिए कि शक्ति पंप्स की ब्रांडिंग की इतनी बढ़िया स्थिति है आज की तारीख में कि 25,000 में से 15,000 पंप का पोर्टल महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने खोला और खोलने के 3 घंटे के अंदर पोर्टल फुल हो चुका था। मतलब हमारे कस्टमर हमारे लिए इंतजार कर रहे थे, जो 3 घंटे में हम लोग उसको अचीव कर पाए। हमारे कंपटीशन 3 महीने में भी नहीं कर पाए। तो ये मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपने पूछा, इससे आपको क्लैरिटी और सारे लोगों को क्लैरिटी हो जाएगी, नहीं तो मिस हो जाता है। ओके, तो उसका एग्जीक्यूशन अपना चालू हो गया? यस यस यस, गोइंग ऑन। ओके, थैंक यू सो मच। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। Thank you. Thank you. Next question comes from Vivek Gautam from GS Investment. Please go ahead. Yeah, is it, am I audible? Yes, sir. Yes, Vivek. हाँ सर, ये ऐसा था कि हमारा सोलर सेल का प्लान था और अब सोलर सेल की कैपेसिटी इंडिया में काफी ज्यादा आ रही है, तो वुड वी स्टिल लाइक टू गो इन फॉर दिस हैवी कैपेक्स थिंग एंड लोअरिंग अवर ROE ROC, और या हम अभी वेट करेंगे फिर आगे चल के देखेंगे सोलर सेल का? सर विवेक, ऐसा है ना, अभी भी हमारा ऐसा मानना है कि जितनी कैपेसिटी इंडिया में आई है उससे ज्यादा रिक्वायरमेंट सोलर ग्रह में, सूर्य ग्रह में और कुसुम में, और इंडिया की रिक्वायरमेंट उससे ज्यादा है। अभी कैपेसिटी कम आई है, इसलिए हम स्टार्टिंग में अभी 2 गीगा का प्लान लेके चल रहे हैं। और हमारा खुद का कंजम्पशन अभी आप देख रहे हो कि 3,000 करोड़ हमारा हमने अगर प्लान किया है, तो हमको खुद को 1,500 करोड़ के आसपास या 1,200-1,400 करोड़ के आसपास हमको खुद को ही सोलर सेल लगने वाले हैं। तो आने वाले समय में जब कभी सोलर मैन्युफैक्चरर हमको सोलर सेल देने में देरी करेंगे, तो हम अपने आप में आत्मनिर्भर रहना चाहते हैं। हम इसीलिए ये यूनिट लगा रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी डिपेंडेंसी हमारे जो सोलर मैन्युफैक्चरर पे न हो, और हमारी रिक्वायरमेंट तो आने वाले समय में डे बाय डे बढ़ने वाली है। अगर आप 5 साल के बाद या 4 साल के बाद देखें तो हिंदुस्तान में तो सोलर सेल की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा बढ़ेगी। इसलिए हमने सोच के ये प्लान लगाया है। और अभी आप देखेंगे कि इसमें जो मार्जिन भी देख रहे हैं कि जो DCR सेल में जो मार्जिन है आज की तारीख में, जो प्राइस के सोलर सेल हमको अवेलेबल है, वो सेल में हमारे जो वेंडर्स हैं जिनसे हम परचेस कर रहे हैं, वो उनके साथ, क्योंकि डिमांड सप्लाई का मैटर है, इसलिए प्राइस का भी मैटर है। जो सोलर पैनल, सोलर सेल चाइना से उपलब्ध है, वो हम यहाँ पर 30 से 40% प्राइस ज्यादा पे परचेस कर रहे हैं। अभी 30% मिनिमम से ज्यादा से परचेस कर रहे हैं। तो ये भी एक इशू है। तो हमारा ऐसा मानना है कि हम अगर 2 गीगा का एक प्लान लगाएंगे, तो विवेक इसमें जरूर है कि हम अपने एक तो कॉन्फिडेंट होंगे कि हम टाइमली सप्लाई कर पाए कुसुम को लेके, क्योंकि हमारा हेवी इन्वेस्टमेंट है। हम 10 लाख पंप की कैपेसिटी पे पहुंच जाएंगे, और 10 लाख पंप की कैपेसिटी पे अगर पहुंचेंगे तो हमारी सोलर की रिक्वायरमेंट 10 गीगा होगी। तो हम तो चाहते हैं कि देश में और भी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स आए आगे और वो अपना सोलर प्लांट लगाएं। हम तो सिर्फ अपनी थोड़ी सी कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर रखने के लिए हम अपना ये प्लांट लगा रहे हैं, जो सपोर्ट करेगा हमको, इसलिए हम लगा रहे हैं। पहले जो आप बोल रहे थे कि थोड़ा सोलर सेल की शॉर्टेज वगैरह है, तो सिचुएशन हैज इम्प्रूव्ड अ लॉट। अब पहले जैसा वो क्रिटिकलिटी नहीं है, जिसकी वजह से अब ऑर्डर आपको डिफ्यूज करना पड़ रहा था आपको। विवेक, इसके बारे में कौन रिप्लाई कर सकता है कि सोलर सेल की शॉर्टेज है या नहीं है? तो आपको ये जान के खुशी होगी कि देश के सबसे बड़े डोमेस्टिक कुसुम के परचेजर हम हैं, और अभी भी हमको टाइमली सप्लाई नहीं मिल रही है। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। आज भी हमने जिन लोगों से एग्रीमेंट किया है, वो क्वांटिटी 1 साल में हमको उतनी मिलती दिख रही है, उससे ज्यादा मिलती अभी आज की तारीख में हमको विवेक दिख नहीं रही है। जैसे जैसे इसमें आगे और डेवलपमेंट होंगे आपको बताएंगे। तो दूसरी बात की सर, कुसुम 2.0 की भी कुछ बात हो रही है। गवर्नमेंट का फोकस जो है बेसिकली रूट का रिप्लेसमेंट सोलर पावर से, और ग्रिड फैसिलिटी सेटअप करने में जो खर्चा होता है वो काफी एक्सपेंसिव पड़ता है। तो कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी कुसुम में आगे कुछ बड़ा प्लान करा जा रहा है सर? मैं तो चाहता हूं, मैं पिछली भी कालों में अपने इन्वेस्टर को बता चुका हूं विवेक, कि अगर हम ये सब्सिडी बिजनेस बंद हो जाए तो हम अच्छे से और बड़ा बिजनेस करेंगे, क्योंकि देश में सोलर पंप की रिक्वायरमेंट है,
और देश में पंप चाहिए। देश में किसानों ने सोलर पंप से खेती होते हुए देख लिया है, अब उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी आ गया है। महाराष्ट्र में, अपने राजस्थान में और बहुत सारे स्टेट में 40% फार्मर शेयर खुद अपना इन्वेस्टमेंट करके ही उसमें पंप खरीद रहा है। तो अब मुझे नहीं लगता है कि आने वाले समय में सरकार के ऊपर इतनी डिपेंडेंसी होने वाली है। कैश मार्केट भी खुल चुका है। अब सर, ये लाडली बहन और लड़की बहन योजना की वजह से तो हमारा पेमेंट थोड़ा डिले नहीं हो रहा है? डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट का पैसा काफी वहां पे जा रहा है, तो इसकी वजह से थोड़ा रिसीवेबल्स का एक इश्यू आ सकता है क्या? अगर आता, लाडली का अगर इफेक्ट आता तो हम 178 से 152 दिन में डेटर कैसे ला पाते ब्रदर? ठीक कह रहे हैं सर। और एक्सपोर्ट्स में क्या कैसा अपॉर्चुनिटी साइज लग रहा है? हमारा युगांडा के अलावा और किसी कंट्री, बांग्लादेश में सेटबैक मिल गया हमारे को थोड़ा सा, और नई गवर्नमेंट चेंज होने की वजह से। नहीं, ठीक है। बांग्लादेश एक अपना बहुत छोटा देश है। वर्ल्ड में सभी जगह हम सोलर को लेके काम कर रहे हैं, और भी आगे हमारे जो प्लान है वो हम बिल्कुल आपको बताएंगे। जैसी कुछ कंफर्मेशन आती है जरूर हम बताएंगे। और एक्सपोर्ट में तो हमने आपको अभी बताया कि 500 करोड़ का काम हम एक्सपोर्ट में करेंगे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you. Our next question comes from Chandan Kumar, a retail investor. Please go ahead. नमस्ते सर, एम आई ऑडिबल? हाँ चंदन, बोलिए। हाँ सर, बहुत अच्छा नंबर्स के लिए सर धन्यवाद आपको। मैं सर ये जानना चाहता सर, एक उड़ीसा में एक टेंडर हुआ है सर, उसमें मैंने देखा है कि शक्ति पंप पैनल्ड है, बट पीपीसी में हमने कभी उड़ीसा के बारे में कोई जिक्र नहीं किया है सर। तो क्या वो हम लोग उसको मान के चल रहे हैं कि हमको नहीं अलॉट होगा? छोटा है तो छोटे की डिटेल आपको बताएंगे। कहाँ अभी छोटा है उड़ीसा में, अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, और जरूर कुछ वहां से बड़े ऑर्डर्स आएंगे, हम बिल्कुल आपको इन्फॉर्म करेंगे। लेकिन एग्रीमेंट पे तो इन्फॉर्म हम करते नहीं है किसी को, हम इम्प्लीमेंट में किसी को इन्फॉर्म नहीं करते, इसलिए आपने हमारे पीपीटी में नहीं देखा होगा। जैसे ही वहां से कुछ ऑर्डर बड़े आएंगे तो जरूर हम बताएंगे आपको। सर एक और मेरा प्रश्न है सर, कि मैं जो समझ पा रहा हूँ सर, कंपोनेंट सी बहुत सारे स्टेट में बहुत बड़े नंबर में आ रहा है सर, तो हम लोग ये नहीं क्यों सोचते हैं कि कुछ ऐसी कंपनी से एग्रीमेंट करें जिनसे हम उनको पंप सप्लाई करो, कुछ पार्ट वो देखे। क्योंकि सर कंपोनेंट सी मैं देख रहा हूँ कि एपी में, महाराष्ट्र में बहुत सारा नया नया टेंडर आ रहा है, और उस पर हम लोग थोड़ा कम फोकस कर रहे हैं सर। तो क्या आपका भी यही सोच है कि थोड़ा सा इसमें क्लैरिटी मेरे को कंपोनेंट सी के बारे में सर? चंदन, कंपोनेंट सी में थोड़ा अभी कंफ्यूजन है। कंपोनेंट सी में थोड़ा उसको क्लियर करेंगे, और जब क्लियरिटी आ जाएगी तो फिर आप लोगों को भी बताएंगे और उस पर काम भी करेंगे। अभी हम खुद ही उसमें क्लियर नहीं है, तो आपको कैसे बताएं उसके बारे में। धन्यवाद सर। थैंक यू चंदन, थैंक यू। Thank you. Next question comes from Jainam from Saltoro Investment. Please go ahead. Hello, congratulations on a very good set of numbers. मुझे ये स्लाइड 33 आपका जो है in this particular presentation about the retail and cash business, so I wanted to understand वहाँ पे क्या opportunity आपको दिख रही है, if you could elaborate a bit. जैनम, एक्चुअली कैसा है कि हमने जो है ना अपने एक्सक्लूसिव काउंटर्स बनाना स्टार्ट किया पैन इंडिया में, जिसमें हमको एक अच्छा बट अभी ये इनिशियली स्टेज पे है, इसमें बड़े नंबर्स हम अभी कमिट नहीं कर रहे हैं। बट हाँ, हमने अपना जो सर ने अभी आपको गाइडलाइन दिया था कि हम चाहेंगे कि गवर्नमेंट से ये बिजनेस अगर बंद भी हो जाता है तो हम रिटेल में करना चाहेंगे, तो उसके लिए हमने पहले से तैयारी स्टार्ट कर दी है, और इसमें हमको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है पैन इंडिया में, और करीब हम 80 डीलर डिस्ट्रीब्यूटर अपने बना चुके हैं अभी आज की डेट में। Okay. Solar. And I also that's great. I also wanted to understand. I think हम लोग ने डेट का जो लिमिट था that has been increased from 1,000 crores to 2,000 crores. So wanted to get some understanding on the same. If you could throw some light. एक्चुअली कैसा है कि अगर आपको पता हो तो जो हमारा गवर्नमेंट बिजनेस है उसमें 3% का हमको गारंटी, परफॉर्मेंस गारंटी देना रहता है। तो जैसे जैसे ये नंबर्स बढ़ेंगे, जैसे लाइक अभी इस साल का भी जो सर ने गाइडलाइन दिया आपको 3,000 करोड़ का, और उसके आगे की जो हमको ग्रोथ दिख रही है उसके अकॉर्डिंग हमको एक बैंक गारंटी और के लिए प्लस एलसी के लिए जितनी भी सोलर पैनल्स है वो सारी एलसी बेस्ड प्रोक्योर्ड होती है। तो इसलिए हमको एक ये मिनिमम वर्किंग कैपिटल के लिए अरेंजमेंट करके रखना पड़ता है। ओके। जैसे जैसे रेवेन्यू आएगा इसलिए हमको वो क्रेडिट लाइन भी बढ़ानी पड़ेगी। बाकी ठीक है।
डीसीआर सेल के जो सप्लायर हैं उनको एडवांस में एलसी देनी पड़ती है हमको, तब वो प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से एडवांस में एलसी अगर देनी है, या एडवांस में एलसी देने के साथ साथ में अगर चाइना से सेल भी इंपोर्ट करके लाके उनको देना है, तो उसमें पैसा तो हमारे वर्किंग कैपिटल तो हमारा ही लगता है। और वही कारण है हमारे इन्वेस्टमेंट करके हम 1200 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करके सोलर प्लांट लगा रहे हैं, कि अगर हमको एलसी 120 दिन की खोलनी है और अगर हमको एडवांस में सेल भी खरीदना है, तो कैश भी देना है, बुकिंग भी करनी है, तो हम अपना प्लांट क्यों नहीं स्टार्ट करें। वर्किंग कैपिटल तो ऑलरेडी हमारी लगी हुई है। नहीं, एकदम बराबर बात है। आई थिंक backward integration for a solar plant must be done, it seems, given how the situation is. Congratulations and all the best. Thank you. Thank you, Janu. Thank you, Janu. Thank you. Our next question comes from the line of Rahul Ranka from Kushal's Investments. Please go ahead. Good afternoon, sir. Am I audible? Yes, yes. सर, आई वांटेड टू नो, मेरे को ये जानना था कि a year later, one year from now, what can be the order book which we might have, sir? सर, ऑलरेडी आपको सर ने बताया हुआ है कि इस साल का जो टारगेट है वो 3000 करोड़ का मिनिमम है, और अभी 1650 की जो ऑर्डर बुक है वो ऑलरेडी है। इसके अलावा एक्सपोर्ट का करीब 500 का एक्सपेक्टेशन है। तो आई थिंक देयर इज सफिशिएंट ऑर्डर बुक एंड देयर इज सफिशिएंट नंबर। In future, whatever order we will receive, we will intimate you within 12 hours, as committed by sir. नहीं सर, मेरे को थोड़ा ये मतलब समझना था कि हमारा जो आगे का ऑर्डर बुक है, डेफिनेटली सेल 3000 का हमारा जो गाइडेंस है और मार्जिन है वो नेक्स्ट 1 ईयर तक तो समझ में आ गया सर। बट आफ्टर ए ईयर डू वी हैव दैट सफिशिएंट जहाँ से हमें और आगे उसका ग्रोथ मिल सके सर? सर, बड़ा अपॉर्चुनिटी है सोलर का, जैसे सर ने बताया था आपको ऑलरेडी। तो अभी तो इसमें ये तो हम कह रहे हैं कि ये स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो बहुत बड़ा काम करना बाकी है। 30 लाख पंप का एमपी गवर्नमेंट बोल चुकी है, 35 लाख पंप का महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल चुकी है। अभी इतने ही मार्केट हम कर लें, वही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि पिछले साल और लाइक लास्ट 1 और 2 इयर्स हमारा जो ऑर्डर बुक है वो जो सेल था उससे डबल ट्वाइस था। बट इस बार हमारा शायद 6-8 महीने का ही हमारे पास अभी ऑर्डर बुक है, तो वो क्या रिफिल होगा या नहीं होगा, वो सर वो था मेरा। तो सेल भी तो पुराने सालों में कम था ना। आप पुराना साल देखोगे तो 900 करोड़ 1300 करोड़ और फिर उसके बाद 2500। उसके मुकाबले हमारे पास डबल ऑर्डर्स भी थे सर। बट तो ऑलरेडी ऑर्डर डबल है ना ब्रदर। मैं आपको फिर से समझाता हूँ, 3000 करोड़ का हमारा टारगेट है और आज की तारीख में ऑर्डर बुक हमारे पास 2100 करोड़ की है। तो आज भी तो डबल है भाई मेरे। अभी पूरा साल बाकी है, ऑर्डर तो आएंगे ना सर, इन्फ्लो तो होगा, ऐसा बता रहे सर। क्योंकि मतलब जो पिछले साल है उसके हिसाब से अभी 3000 का अगर हमारा सेल का टारगेट है, तो जो पहले के ट्रेंड थे उसके हिसाब से बुक 5-6 हजार करोड़ की होनी चाहिए थी, पहले के लास्ट 2 इयर्स के हैं सर। ओके, वो बोल रहा हूँ, होगी अगले सालों में जरूर होगी। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। Thank you. The next question comes from the line of Ajay Surya from Niveshaay. Please go ahead. Sir, my question is, सर जैसे आपने पिछले पार्टिसिपेंट को भी बताया कि कुसुम का योजना जो है वो एक्सटेंशन के टुवर्ड्स टॉक हो रहा है, तो सर वही जानना था कि उसके ऊपर क्या डिस्कशन हो रहा है, कितना बड़ा साइज का कुसुम का नेक्स्ट योजना है जो वो आएगा और कब तक आने का उसका प्लान है, या जो आप लोग का डिस्कशन हो रहा है इंडस्ट्री में, अगर उस पर आप कुछ हाईलाइट कर पाएंगे। अजय भाई आपका क्वेश्चन फिर से आप बताइए, क्या बोलना चाहते हो? सर जैसे ये वाला जो कुसुम योजना है वो FY26 में खत्म हो रहा है और उसके आगे आप बोल रहे हो कि ऑलरेडी इंडस्ट्री में डिस्कशन चल रहा है जिसके अंदर नया कुसुम योजना आने वाला है। तो सर क्वेश्चन ये है कि जैसे ये वाला कुसुम योजना 14 लाख पंप का था कॉम्पोनेंट भी, तो आने वाला योजना क्या साइज का है, क्या टाइमलाइन में आ सकता है, उसके बारे में अगर कुछ आप हाईलाइट कर पाएं। अजय भाई मैं फिर से कहता हूँ कि ये जो कुसुम स्कीम आई हुई है, कुसुम स्कीम चल रही है,
उसके लिए अपने देश में टोटल 4.5 करोड़ पंप की रिक्वायरमेंट है। ये कुसुम सिर्फ पायलट है। ये एक बार फार्मर्स को हम बता पाए, इसको परफॉर्मेंस बता पाए, उनको काम बता पाए, और इनिशियल स्टेज पे इन चीजों की प्लानिंग होके चल रही है। और किसी ने ये नहीं कहा कि आने वाले समय में कुसुम बंद हो रही है या कुसुम 2 आ रही है या कुसुम 3 आ रही है। सरकार अपने अपने स्तर पे सोच रही है, कंपनी अपने अपने स्तर पे सोच रही है, और ये आगे चल के हमको इसमें, आपने देखा हो तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि वो 35 लाख पंप लगाना चाहता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट है कि वो 30 लाख पंप लगाना चाहता है। तो 30 लाख और 35 लाख पंप की वैल्यू कितनी है, ये तो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि उस 30 लाख की वैल्यू, 65 लाख पंप की वैल्यू कहाँ जाके खड़ी होगी। तो इसलिए बड़ा मार्केट है। आप अपॉर्चुनिटी छोड़ दीजिए अजय कि इसमें कोई समस्या है। एवरीथिंग इज वेरी गुड, और हम स्टेप बाय स्टेप ऊपर आगे आ रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट ईयर का हमारा सेल और इस साल का सेल, और आने वाले समय में भी हम हर साल ग्रोथ करते जा रहे हैं। स्टेप बाय स्टेप समझते जा रहे हैं, मार्केट को समझते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ओके सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू अजय, थैंक यू वेरी मच। Thank you. Ladies and gentlemen, due to time constraints, we will take this as our last question. I now hand the conference over to Mr. Dinesh Patidar for closing comments. थैंक यू वेरी मच। आप सब लोग आए हमारे यहाँ, और इस बारे में आपने सुना, और मुझे मैं आपको आपके क्वेश्चनों का आंसर प्रॉपर दे पाया। फिर भी आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमारी EY की टीम को लिखें, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप EY के बता सकते हैं। हम जरूर आपको आपके जो भी प्रश्न होंगे उनके उत्तर देने में तत्परता से हम आपको उत्तर देंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन, वेरी गुड। ये अच्छा साल रहा, आने वाले साल में भी हम हमारे इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you. On behalf of Shakti Pumps India Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us. You may now disconnect your line.